स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे, वो होती क्या है, और उसके बाद हम उनके दरमियान उनकी दो टाइप्स है उनके मतलब स्टडी करेंगे। वेरी इजी, एंड विद सम एग्जांपल्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज physical or what are physical quantities. Okay, now here I have a marker. So first of all, before going ahead, and I'm going to ask you, you know what is the meaning of object? Object mean anything. Object mean anything. For example, I'm going to draw a brick here. I'm going to draw a brick. What I'm going to teach you now, I'm going to teach you something about what are physical quantities. I'm going to relate the physical quantities with some of the example like a brick. Now let I draw a brick, then I'm coming toward this definition which you can find out over here, and I'm going to be read it for you. Now let's draw a brick. Here I have a brick. यानी कि हम लोग एक ईंट को ड्रा कर लेते हैं और फिर वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, तो ये मैंने ईंट की तरह का ऑब्जेक्ट है वो ड्रा कर दिया। राइट, सो बहुत आसानी के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, यानी कि जिस्मानी क्वांटिटीज क्या होती हैं। वेरी इजी, वो क्वांटिटीज जो कि जिनका ताल्लुक किसी ऑब्जेक्ट के साथ होता है, वो क्वांटिटीज, वो चीज़ें, यानी ऑब्जेक्ट की वो पार्ट्स जिनको हम नाप सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स की वो करेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टीज जिनको हम नाप सकते हैं, उनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आप लेबल करें, ईंट हमारे पास है, ब्रिक आई हैव, एंड इफ आई एम गोइंग टू लेबल डिफरेंट things, different part of the brick which could be measured by us. For example, this length, this is the length, you can see this is also length, like you can say width, and let's put it is width and it is breadth. So these are three things in front of you. You can see length, width and breadth. These things can be measured in meters, in centimeters, etc. So this length is a physical quantity. You understand? Something which can be measured. Here you can see measurable quantities are called physical quantities. So in this scenario, we have object, there are so many objects around us. I am also the object, wall is object, roof is object, air conditioner is object, okay, road is object, car is object. So many objects are present around us. All object has some properties which can be measured by us, and these properties determine this object. These properties tell us about this this object. Okay, now here brick has some property like length, width, breadth. These are physical quantities. Brick is not physical quantity. Brick is an object. The things which belong to bricks, which can be measured by us, are known as physical quantities. Some other things about the bricks, यानी brick की कोई और चीज़ें बताएं हमें कि जो कि नापी जा सकती है, वो उसकी फिजिकल क्वांटिटी होगी। फॉर एग्जांपल, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। वॉल्यूम का मतलब है कि ब्रिक कितना स्पेस ले रही है, वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया ऑफ फ्रंट साइड, मैस ऑफ द ब्रिक। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर इसका मैस की बात करता हूं तो मैस भी नापा जा सकता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द ब्रिक, टेम्परेचर। सो माय डियर स्टूडेंट, एनीथिंग रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट which we can measure with the help of some device known as physical quantity. For example, my physical quantity could be the length, the width, my mass, my color, okay, and my density, my body temperature, my position in the space, my time in the space. Anything which is related
anything which can be measured related to the object known as physical quantity. Wall in front of wall is the physical quantity, like area, like height, like density, like volume. So all the things which can be measured related to objects known as physical quantity. Anybody can tell me the physical quantity of ball? I have some like object like this ball object. So anybody can guess an idea what are the ball is not physical quantity. Ball is an object. The thing which we are going to measure about the balls are known as their physical quantity, right? So their physical quantity might be the radius from the center up to the periphery, and some other, the surface area, the volume, the density, etc. These are physical quantity. Okay, a car is moving on the road. Car is physical quantity like speed, acceleration, force. Okay, the color of the car, the hardness of the car, etc. Anything which can be measured are known as physical quantities. Okay, so many physical quantities are spreading around us, like length, mass, time, temperature, momentum, velocity, torque, force, energy, okay, inertia, so all impulse. So all these quantities which I have uttered now are physical quantities. ओके, समझ आ गई? वो चीज़ें जो हम नाप सकते हैं, वो चीज़ें जो किसी चीज़ के साथ मुंसलिक है, जिनको हम नाप सकते हैं, उनको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. आखिरी एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये बोर्ड हमारे सामने पड़ा है, तो बोर्ड की कौन कौन सी खुसूसियात या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको नापा जा सकता है? तो वेरी इजी, इसकी लेंथ है, इसकी हाइट है, इसका एरिया है, इसकी पोजीशन है, किस टाइम पर पड़ा हुआ है, क्या डेंसिटी है इसकी, क्या मैस है इसका, क्या इसका सरफेस एरिया है. ऑल इन सब चीज़ों को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, राइट? सो देयर इज द फिर MCQs फॉर यू. लेट आई एम oral, I am going to ask you MCQs. Okay, all quantities, the quantities which can be measured by us are known as dash. You call physical quantities. Okay, length is the physical quantity, mass is the physical quantity. Now let's move toward the next part of the question, that is types of physical quantity. Now I'm just going to erase the board and then elaborate it. So my dear student, very easy, not a difficult concepts are present here, very easy concepts. Okay, you can understand very easily. Now हमने ये देखना है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज, आप फिजिकल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, सिंपल क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं. बेस क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटी में क्या फर्क होता है, इसको हम देखते हैं. सबसे पहले तो आप अगर देखें इन अल्फाज को, बेस का मतलब क्या है और डिराइव का मतलब क्या है, वेरी इजी. बेस देखिए, मैं कहता हूँ ना कि आप अभी ग्रेड 9th में हो, आपकी बेस बड़ी मजबूत होनी चाहिए, फिर ग्रेड 10 में जाएंगे, फर्स्ट ईयर में जाएंगे. यहाँ से अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं, आप मैथ के अंदर अरिथमेटिक नहीं समझते, आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट वीक हैं, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, चाहे उर्दू, इस्लामियात, जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनके कॉन्सेप्ट अगर आपके वीक है, आप समझ के नहीं पढ़ रहे, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बेस कमज़ोर है और आगे चलकर आपको ठीक है मसला होगा. सो बेस चीज़ें वो होती हैं जो दूसरों को बनाने में हेल्प करती हैं, राइट? सो माय डियर स्टूडेंट, वेरी इजी. बेस क्वांटिटीज वो होती हैं जो खुद नहीं बनी किसी से, जो दूसरों को बनाने में हेल्प करती हैं, जिनको चुन लिया गया है, जिनको समझ लिया गया है. ठीक है, तो जिनको समझ लिया गया है कि ये बेस क्वांटिटीज हैं, दूसरों को बनाने में हेल्प करेंगी. हम देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ कि जो डिराइव क्वांटिटी होती है बेस से मिलके बनती है. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं वो कौन सी क्वांटिटी है जो बेस है. 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं. अभी उनका मैं नाम लिखता हूँ, बहुत जरूरी है. ठीक है, लेट्स सी टुवर्ड द बोर्ड व्हाट आई एम गोइंग टू राइट देयर. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो है बेस के मतलब, बेस क्वांटिटीज. ओके, 7 क्वांटिटीज. ये फिगर याद रखिएगा कि ये मैंने 7 लिखा है. इन 7 को अगर आप रिकग्नाइज कर लें, इनके अलावा जो भी होंगी डिराइव होंगी, और हम देख लेंगे एग्जांपल के डिराइव जो है बेस से मिलके बनती है. ठीक है, रेडी? नाउ नाम लिखने शुरू करते हैं. पहले नंबरिंग की तरतीब, इसमें अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट. यू कैन राइट एनी वन कम इन योर माइंड. ओके, बट बिकॉज वी आर यूज्ड टू
मोस्टली वी आर राइटिंग लेंथ इन द बिगिनिंग। तो पहले मैं शुरू में लेंथ लिख लेता हूँ, फिर आगे इस तरह चलते हैं, इजी है ये तरतीब। तो पहले नंबर पे मैं लिख लेता हूँ कि हमारे पास लेंथ जो है, लेंथ LENGTH, लेंथ। लेंथ के लिए सिंबल भी यूज करते हैं एल। फिजिक्स में या मैथ में हम सिंबल यूज करते हैं क्योंकि सिंबल टाइम बचाते हैं, शॉर्ट होते हैं, लिखने में बहुत जल्दी जल्दी बंदा लिख लेता है, कम स्पेस लेता है। तो लेंथ का सिंबल एल है। लेंथ के बाद दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम ले लेते हैं मैस, ले लेते हैं मैस। मैस का सिंबल एम है, ठीक है। आगे चल चल कर थोड़ा थोड़ा लेंथ के मतलब बता देंगे, आप समझती हैं कि लेंथ को हम जैसे मीटर में नापते हैं, मैस को हम किलो, मैस समझो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी कंटेंट, लेंथ इज सम डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ओके। सो इसके लिए एम यूज करते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो बेस क्वांटिटी आती है, फिर मैं बता दूं बेस क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जो दूसरों को बनाने में हेल्प करेंगी। इन जिस टोटल की तादाद 7 है, इन 7 के नाम को रिकग्नाइज करना, याद करना जरूरी है ताकि आप अगली क्वांटिटी को समझ सके, ठीक है, राइट। तो मैथ्स के बाद अगली हम लिख लेते हैं टाइम। ये हमारे पास आ गया टाइम। टाइम के लिए हम स्मॉल टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता है ना टाइम का। तो सम टाइम मैं आपको टाइम को डिफाइन भी करके बता दूंगा क्योंकि इस टाइम का जो कॉन्सेप्ट अभी हमारे पास मौजूद है, समझ लीजिए कि सिंपल अब ये समझने की ज़मीन की रोटेशन के साथ है या फिर वाइब्रेशन ऑफ एटम्स के साथ है, जो हम कभी ना कभी हम समझ जाएंगे, ठीक है। ऐसी लेंथ भी हम बता दूंगा मैं आपको, सम टाइम की लेंथ कैसे क्या आगे होती है, फर्दर आगे स्टडी करेंगे आप। तो टाइम के बाद और कोई चीज़ हम देख लेते हैं, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ओके। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम लोग शो कर लेते हैं, लेट करो कि इसके लिए जो सिंबल यूज किया गया कैपिटल टी। कैपिटल टी टेम्परेचर के लिए और स्मॉल टी टाइम के लिए, ठीक है। इन सिंबल को भी थोड़ा याद रख लीजिएगा क्योंकि कभी कभी हम जब इनको टेम्परेचर पूरा लिखने के बजाय कैपिटल टी लिख लेते हैं, हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है। नेक्स्ट चीज़ आ गई हमारे पास, टेम्परेचर के बाद अगली चीज़ आ गई करंट, ले लेते हैं करंट। करंट CURRENT, करंट, ठीक है। करंट के लिए जो सिंबल किताब में लिखा है वो मैं यहां से देख लेता हूं कि आई से शो करें करंट को, आई से, ठीक है। इंटेंसिटी इसका मतलब होता है, ये बाद में हम कभी देखेंगे। करंट के मतलब कॉन्सेप्ट चैप्टर ग्रेड 10 के अंदर मौजूद है, ठीक है। करंट के अलावा और कौन सी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एक और चीज है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। 6 नंबर पे आ रही है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके। ये चीजें हम डिटेल में नहीं समझ सकते अभी क्योंकि टॉपिक तो जनरल टॉपिक, इंटेंसिटी ऑफ लाइट समझिए लाइट की शिद्दत। हम उसमें देखते हैं एनर्जी, देखते हैं एनर्जी डिवाइड बाय टाइम डिवाइड बाय एरिया या पावर डिवाइड बाय एरिया, जो हम इंटेंसिटी महसूस करते हैं। यानी कि अगर रोशनी वाला बल्ब है मैं अपनी आंख के नज़दीक लाऊंगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इंटेंसिटी आपको ज़रूरत पड़ेगी कैमराज वगैरह, वीडियो कैमराज, उन कैमराज वगैरह को समझने के लिए ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ रोशनी का कॉन्सेप्ट होता है। तो मैं भाई तो इंटेंसिटी के लिए हम सिंबल यूज कर सकते हैं, इसके लिए भी हम सिंबल आई की तरह का, एल की तरह यूज कर लेंगे, एल, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैपिटल एल यूज कर दें। और 7वें नंबर पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मीन जैसे कि हम लोग जाते हैं शॉप से 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम कुछ चीज़ लेके आते हैं, लेकिन हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब बहुत ही छोटे मिकदार पे एटॉमिक लेवल पे जाते हैं तो हम मोल यूज़ करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत छोटी चीज़ के लिए छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, मोल हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, और बड़ी चीज़ों के लिए बड़े बड़े यूनिट होते हैं जैसे किलोग्राम हो गया, मन हो गया, टन हो गया, ठीक, इस तरह की चीज़ें हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये जो 7 हैं इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे काम आएंगी आपको ये चीज़ें कि ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, दूसरों को बनाने में हेल्प करेगी। अब दूसरी जो क्वांटिटीज हैं जिनको हम डिराइव कहते हैं वो अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। डिफाइन कैसे करेंगे, डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो बेस से मिलकर बनती है, और बेस ये 7 हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके। तो ये क्वांटिटीज किसी और से नहीं बनती बल्कि ये इनको बनाने में हेल्प करेंगी। तो चलिए
डिराइव क्वांटिटी को जरा समझते हैं कि डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, बना के देखते हैं, ठीक है। तो अभी बारी आ गई है डिराइव क्वांटिटीज़ की, वो क्वांटिटी जो कि बेस से मिलके बनती है, ठीक है। परेशान नहीं होगा, आगे चलकर मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर भी मार्क करवा दूंगा कि इसका ये क्वेश्चन कौन सा बनता है, इसका जवाब कहाँ से बनता है। इस पे एक दो लेक्चर रखूंगा जिस पे पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो एग्जामिनेशन पॉइंट है इससे इम्पॉर्टेंट है और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको एक लिस्ट के तौर पे समझा दूंगा, ठीक है। समझा दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की कोई एग्जांपल हमारे दिमाग में आ जाए तो ये अच्छा हो जाए, डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। आपको मैंने बोला है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो कि मिल के बनती है बेस से। तो देखिए, लेट करो कि अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम की बात करता हूँ, वॉल्यूम 3D चीज़ है, ठीक है। अगर मैं किसी चीज़ का वॉल्यूम नापता हूँ, जैसे कि मेरे पास कोई 3D क्यूबिकल ऑब्जेक्ट मौजूद है, ऐसे अगर मैं इसका वॉल्यूम नाप रहा हूँ तो इसमें मुझे पता है कि 3 लेंथ इस्तेमाल होती है। ये एक लेंथ L1 ली, L2 L3, और इसका वॉल्यूम हमें पता है कि तीनों लेंथ को L1 मल्टीप्लाई L2 मल्टीप्लाई L3, आपने देखा 3 दफ़ा लेंथ इस्तेमाल हुई और आपको पता है कि लेंथ बेस क्वांटिटी है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। सो श्योरली वॉल्यूम जो है खुद नहीं है बल्कि लेंथ से मिलके बना है, 3 टाइम लेंथ से मिलके बना है, इसलिए ये डिराइव क्वांटिटी है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें, इसके साथ फिर हम लेक्चर खत्म करेंगे। छोटा सा मैं आपको रिव्यू बोलूँगा और इंशाल्लाह ताला फिर लेक्चर नंबर 3 की तरफ बाद में जाएंगे। तो हमारे पास एक और जो एग्जाम्पल है वो आगे चलकर आप अगले यूनिट पढ़ेंगे, इसे कहते हैं स्पीड। आप स्पीड को आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ये समझ लीजिए कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। तो डेफिनेटली डिस्टेंस जो है वो लेंथ की तरह की चीज़ है और टाइम, तो लेंथ और डिस्टेंस टाइम दोनों के दोनों जो है आपको पता है कि ये बेस क्वांटिटीज हैं, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस और डिस्टेंस टाइम जब दोनों मिले हैं तो स्पीड बनी है। तो इन दो एग्जांपल से आपको अंदाजा हो गया, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे अपनी बुक में तो बहुत ही वाज़ेह तौर पे अच्छा लिखा हुआ है। जैसे ऊपर देखें, ये यहाँ पे बेस क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी, नीचे टेबल बना है। अगर आप इस टेबल के अंदर जाकर देखें तो यहाँ पर सारी बेस क्वांटिटी के नाम जो मैंने लिखे थे, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, और नीचे वाले टेबल में एग्जांपल थे। ये आस्ता आस्ता जैसे बुक में आगे जाएंगे तो एग्जांपल आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। स्पीड क्या होती है आगे बयान किया जाएगा, लेकिन इन सात को छोड़ के नीचे वाले टेबल में जो भी लिखी हो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि सारी क्वांटिटी बेस से मिलके बनी है, ठीक है। स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, डेंसिटी एंड चार्ज, ये सारी चीज़ें गायब बगैर आपके नोटिस में आती जाएंगी। परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इतना समझना ज़रूरी है कि बेस और डिराइव में क्या फ़र्क है।